Okay, write down the question. While launching a rocket of mass, while launching a rocket of mass, 2 into 10 to the power 4 kilogram, a force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied for 20 seconds. Is applied for 20 seconds. Calculate the velocity attained by the rocket. Calculate the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds. At the end of 20 20th second. 'सोल्यूशन में आप क्या करोगे? Impulse force into time is equals to change in moment. Force it is given 5 into 10 to the power 5, and T is also given 20. Mass is also given 2 into 10 to the power 4. V is that we have to calculate, and U that we have to, that is 0. Initial velocity, final velocity that we have to calculate. Okay, calculate. And what is the value of V? Tell me what will be the value of V. 500. Okay, good. That is the answer. बहुत सिंपल है, 2 लाइन में हो जाता है. Okay, write down. Next. Next question. A 75-kilogram man stand in a lift. A 75-kilogram man stands in a lift. What force does the floor exert? What force does the
floor exert on him when the elevator starts when the elevator starts moving upward with an acceleration of moving upward with an acceleration of 2 meter per second square. 2 meter per second square. Take g equal to 10. Take g equal to 10 meter per second. Repeat the question. A 75 kilogram man stands in a lift when force does the floor exert, sorry, what force does the floor exert on him when the elevator starts moving upward with an acceleration of 2 meters per second? Take g equal to 10 meters per second square. Tell me the answer. 900. ये ऐसे कर सकते हैं, नेट वेट हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं इसको 900 अपॉन जी से डिवाइड करूं, जी यानी 10, है ना, देख लेना था, तो ये आ जाएगा के जी एफ, है ना. के जी एफ मतलब किलोग्राम फोर्स. अगर जी से डिवाइड करता हूँ वेट को तो किलोग्राम फोर्स आ जाएगा. तो ये हो जाएगा थोड़ा 90 के जी एफ, किलोग्राम फोर्स. Okay, write down next question. The string of a parachute, the string of a parachute can bear a maximum tension can bear a maximum tension of maximum tension of 72 kg kilogram force. And bear a maximum tension of 72 kilogram force by what minimum acceleration? By what minimum acceleration can a person
Can a person of 96 kilogram descend 96 kilogram descend by means of this parachute? By means of this parachute. Okay, solve it. Try to solve. 2.5. अच्छा, देखते हैं. Good, very good. Descending down में है ना, तो 72 है ना. That is the answer. Done.
Voice is clear, na? Voice and audio and video both. Clear or not? Audio and video, both are clear. ओके ओके। देखो, एक चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना? ये अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है इसमें लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हुए, क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? होना तो नहीं चाहिए। हाँ, इजी था, समझ में आ रहा था। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में हमने पढ़ा हुआ, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज हमने पढ़ा हुआ है, उसमें भी आपने देखा बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी, है ना? मैं पहले इसलिए कह दिया था कि ये चैप्टर टफ है, मैं नहीं कहता हूँ, सब लोग कहते हैं टफ है, सब लोग कहते हैं कि टफ है ना। अभी तक कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको कि कोई बहुत ज्यादा टफ था। इस चैप्टर के दो पार्ट थे, एक हमने बात किया था विदाउट फ्रिक्शन, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो विदाउट फ्रिक्शन था। अब हम लोग बात करेंगे विद फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है, इन सबके बारे में, मतलब हाफ चैप्टर फिनिश हो गया, हाफ चैप्टर बचा। और ये जो फ्रिक्शन वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है थोड़ा सा कॉमन सेंस, बहुत ही थोड़ा सा, इस तरह से अभी तक आप लोग लगाए हुए हैं उसी तरह से कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है। ये बात याद रखना आप लोग, बार बार मैं कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ चुके हो इसको रिवाइज करना जरूरी, पर डे के हिसाब से आपको रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओ। राइट डाउन हेडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, write down definition. Whenever a body moves or tends to move, whenever a body moves or tends to move over the surface over the surface of another body, over the surface of another body, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play. A force comes into play a force comes into play which acts parallel to the surface, which acts parallel to the surface of contact, parallel to the surface of contact, parallel to the surface of contact
and opposes the relative motion. And opposes the relative motion. And opposes the relative motion. And this opposing force is called and this opposing force is called frictional force. This opposing force is called frictional force or friction. This opposing force is called frictional force or friction. बहुत बेसिक कंसेप्ट पे समझना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को आप लोग समझना। मैं कहूँ कि अगर दिस इज अ सरफेस, है ना, ग्राउंड है ये, और ग्राउंड पे अगर कोई ब्लॉक रखा होता है ऐसे लाइक दैट, इसका वेट डाउनवर्ड है ना, दैट इज इक्वल टू mg. दिस इज अ फोर्स डाउनवर्ड, है ना, the force is downward, but the object is still in rest. न्यूटन्स सेकेंड लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाए तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. बोला गया इसे न्यूटन ने कि अगर किसी बॉडी को फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए. लेकिन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, जैसे टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, है ना, अच्छा वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. जब इस बॉडी में फोर्स लग रहा है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? सब कोई बताएगा, सारे स्टूडेंट बताएंगे व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड. ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड राइट व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउनवर्ड. बोलोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. एक साइकोलॉजी होती है कि आप बोलते हो, रिएक्ट करते हो तो आपकी लर्निंग अच्छी होती है. आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी अगर आप रिएक्ट करते हो, एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करते हो. अदरवाइज कोई मतलब नहीं होता. बार बार मैं कहता हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट सही लिखो चाहे गलत लिखो, मैं सब कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन लिखो जरूर. नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ से है? बिकॉज ऑफ सरफेस अपोजिंग, ठीक है. देयर इज ग्राउंड, ठीक है. One, two, three, four, five, six participants only. only 6 students are applied out of 30 plus. Abhineet Yadav. Abhineet Yadav, I'm talking to you. Are you here? Abhineet Yadav. Abhineet Yadav, I'm talking to you. Where are you?
ये हाल है इन लोगों की, इसीलिए मूड कभी कभी खराब हो जाता है। फिर होता है कि छोड़ो ऐसे ही पढ़ा दो। फिर वो होता है ना मन, आयुष सिंह, आयुष सिंह, 11th मैथमेटिक्स, आई एम टॉकिंग टू यू, वेयर आर यू? आयुष सिंह, आयुष यस सिंह, सर। क्या कर रहे यस हैं? सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कमेंट करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको? सर एक्चुअली आई एम अ न्यू स्टूडेंट, आई जॉइन जस्ट टुडे। न्यू स्टूडेंट तो क्या होगा? सर आज ही ज्वाइन ये किया नहीं है। समझ, हाँ? आज ज्वाइन किया तो कुछ तो बता सकते हो इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सही बताना आपको। जब सब सही जान जाओगे तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? यहाँ पे आने दो तो मुझे मेरी पढ़ाने की जरूरत क्या है? जब सही तुम जान जाओगे सब तो फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट करना है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके कमेंट करो। आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके कमेंट करोगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। जब सब सही जान जाओगे तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? बताओ। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाने नहीं आता, यहाँ पे सिखाने आता हूँ। पढ़ाने का मतलब मैं पढ़ा दूं, समझ में आया चला है, कार में जाओ। यहाँ पे सिखाने के मकसद से आता हूँ। मेन एम हमारा यहाँ होता है सिखाना। यहाँ पे आए हैं तो सिखा के जाए। सिर्फ मैं बोल दूं, समझ में आया चला है, आपको दिखे चाहे ना दिखे, चाहे आपकी आवाज क्लियर हो चाहे ना हो, आया पढ़ा के चला। मैं सच बताऊं, अगर एक्टिव रहोगे तो मेरा मन लगेगा पढ़ाने। कुछ स्टूडेंट ऐसे, चलो ठीक है, अगली बार से याद रखना, न्यू स्टूडेंट या ओल्ड स्टूडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सबसे बड़ी गलत बात होती है आपकी स्टूडेंट की, कि जहां से स्टार्ट करते हो ये नहीं सोचते चलो यहीं से स्टार्ट करते, नहीं। अगर सर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे, अगर आपने 2 और 1 नहीं पढ़ा तो आपके मन में सिर्फ ये रहेगा कि अब ये तो समझ में आने वाला है नहीं। 4 पढ़ा है तब भी नहीं समझ में आएगा, 5th 6th 7th 8th ये बढ़ते जाएंगे, और तो वही फर्स्ट पे अटके हो, सेकंड पे अटके हो, फिर उसके बाद थर्ड पे आ रहे, फोर्थ पे आ रहे, ना तो यही क्लियर हो रहा है और ना तो यही क्लियर हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से समझोगे चैप्टर नंबर 5 से, तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसको चैप्टर नंबर 5 से अगर स्टार्ट करता तो वहां से समझ ना आता। लेकिन आपके मन में एक साइकोलॉजी बैठ गई है कि नहीं, यहाँ से तो समझ में आएगा नहीं। चलो खैर, सच बता रहा हूँ, कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है तो लोग रिप्लाई नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बाद में रिप्लाई किए कि सर आप कुछ पूछेंगे नहीं हमसे, है ना? मोहम्मद यूसुफ, आर यू हियर? मोहम्मद यूसुफ, यस सर। तुम्हारी वीडियो क्यों ऑफ है? ऑन हो गई? गुड। यस सर। ऑन, किसी स्टूडेंट की वीडियो ऑन हो सकती है लेकिन ऑन नहीं है। किसी किसी की मजबूरी है, मानता हूँ कि वीडियो सही नहीं चलती है या नेटवर्क स्लो होता है, उनकी मजबूरी है, मानता हूँ। हाँ बताओ, रिप्लाई क्यों नहीं किए थे उसका? सर क्या हूँ सर रिप्लाई? ये हो बाद में किया, देख रहा हूँ, बाद में किया, पहले क्यों नहीं रिप्लाई किया? कोई रीजन था? नो सर। फिर अभी तुम लोग अभी बहुत छोटे, बहुत छोटे, अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई तुम लोग, है ना? और टीचर्स जो होते हैं ना वो काफी एक्सपीरियंस होता है। मैं तुमसे 10 साल 12 साल बड़ा हूँ। ये साइकोलॉजी होती है पढ़ने की। उतना ही पढ़ के मेडिकल में इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, उतना ही पढ़ के कुछ नहीं करते। पढ़ने का तरीका, पढ़ने का मेथड बदल जाता है ना, सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, डायरेक्शन भी जरूरी होती है। मैं इसलिए कहता हूँ जब लिखोगे ना तो माइंड आपका एक्टिव होगा।
इसीलिए कहता हूँ बार बार कि आप पार्टिसिपेट करो, आप रिप्लाई करो। चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार ध्यान रखना। चलो यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। एक्टिव रहने से कुछ दिमाग में ज्यादा घुसेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, अपने लिए क्या है, मेरा क्या है बताओ, मेरा क्या है। टीचर्स का क्या जाता है, पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ा के चला जाऊंगा। कोई कहेगा कि सर समझ में नहीं आया, या कोई गार्जियन कहेगा कि सर आप पढ़ाते तो समझ में नहीं आता। दो चार गार्जियन कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई पढ़ने वाला है, कुछ नहीं पढ़ने। तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा, स्कूल अपना है, स्कूल चलता रहेगा। इसका नुकसान किसका, अपना होगा, आपका होगा ना। डेली 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 मोटिवेट ना करना पड़े, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। मैं आपको अपने अपने गोल को, पहले तो अपने गोल को सेट करो, और फिर उस गोल को या उस एम को या उस आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करो। बात करें तो हम लोग फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन कह रहा है कि अगर जब एक ब्लॉक है कोई, दिस इज वन ब्लॉक एंड दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज द अनदर बॉडी, this is first body and this is the second. When they are rubbing each other, when they are sliding over each other, one body is sliding over another body, okay, then there will be a frictional force. Frictional force. Then there will be a frictional force depending upon the, well, depending upon the velocity. Sorry, not velocity. Depending upon the nature of the surface. Nature of the surface. ठीक है। अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके जाता हूँ, इधर की तरफ कुछ मैं वेलोसिटी देता हूँ, तो इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स है। जब किसी एक बॉडी पे दूसरी बॉडी को मैं ऐसे फोर्स लगा के छोड़ देता हूँ, वो रब करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, तो धीरे 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 वो स्टॉप कर जाती है। क्यों स्टॉप कर जाती है? बिकॉज एन अपोजिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बॉडी पे जब दूसरी बॉडी स्लाइड करती है, हम ऐसे पुश करके उसको छोड़ देते हैं, वो आगे आती है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती, कम होती चली जाती। वेलोसिटी कम होती चली जाती। Sir, your mic is off. इधर की तरफ बॉडी, बॉडी क्या बोलते हैं कि बॉडी अपनी वेलोसिटी को कम करती जाती है, यानी देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, यानी जो फोर्स लग रहा है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इधर इधर की तरफ है, यानी फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, यानी उसको वो रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल का पैडल मारना छोड़ दोगे, फोर्स अप्लाई करना छोड़ दोगे, तो धीरे 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 रुक जाती है, यानी कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, अपोजिट, तभी तो वो रुक रही है। फोर्स अपोजिट लग रहा होगा तभी वो रुक रही है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस के अंदर पैरेलल लगता है, सरफेस से पैरेलल लगता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जब ऊपर की तरफ जो सरफेस लगाता है, सरफेस, सरफेस जब इसको फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये फिगर बनाओ आप लोग, ड्रॉ दिस फिगर एंड राइट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। इस पे देखो ध्यान से ना, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एफ इधर की तरफ, और इधर की तरफ लग रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, वेट भी लग रहा होगा इसका, और इसका नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में एन, कभी कभी आर से डिनोट करते हैं, कभी कभी एन से करते हैं, दोनों सीधे, आर या एन दोनों, आर एन। यहाँ पे देखना एक चीज क्या है कि अगर मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं और इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड वेट है, अपवर्ड इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट है, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स मैं 0 न्यूटन लगा रहा हूं, तो बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम पे कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, मैं एफ अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन लगाता हूं, 1 न्यूटन। अगर मैं अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन लगाता हूं तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर रही। ध्यान से देखना, समझना है। इफ वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स हियर, द बॉडी इज नॉट मूविंग, not accelerating. What is the meaning? That means there will be an opposite force. जैसा कि यहाँ पे अगर ये बॉडी नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब जितना इसका वेट है उतना ही ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा। यहाँ पे हम ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं कि बॉडी है, बड़ा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ब्लॉक को खींचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये खींच नहीं पा रहा है, यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पे एक बैकवर्ड में फोर्स है। कोई ऑब्जेक्ट हो, हम उसको जब हल्का सा फोर्स लगाए तो क्या वो आ जाएगा, नहीं ना, एक लिमिट तक हम उसको खींचेंगे तब ना आएगा वो। हम बहुत कम फोर्स लगाए, नहीं आएगा। फोर्स को बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, एक टाइम के बाद क्या आएगा, वो आ जाएगा। लेकिन जब हम बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन लगा रहे हैं, तो बैकवर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो ये मोशन नहीं कर रहा है। हम मानते हैं कि अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन लगा दिया गया, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी 2 न्यूटन लग रहा है। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम जब 10 न्यूटन या उससे ज्यादा अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी चलना स्टार्ट कर देती है। यानी कि अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, 10 न्यूटन होगा। लेकिन अगर हम अप्लाइड फोर्स 11 न्यूटन लेते हैं, 11 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी 10 आए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमने लेट किया हुआ है कि लेटर सपोज कोई ब्लॉक है, इसको जब हम खींच रहे हैं तो बहुत कम फोर्स लगा है तो नहीं चल रहा है, 1 न्यूटन पे नहीं चला, 2 न्यूटन पे नहीं चला, 3 न्यूटन पे नहीं चला, 4 पे नहीं चला, 5 पे नहीं चला, 6, 7, 8, 9, 10 पे भी नहीं चला। लेकिन जैसे ही 11 लगाया हमने क्या किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है अब बराबर नहीं, क्योंकि अब ये एक्सेलरेशन करना स्टार्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 7 न्यूटन इधर अप्लाई करता हूं तो बैक पे 7 न्यूटन अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 आ रहा है। ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इसका मतलब जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही बैकवर्ड में फोर्स मिलेगा, तभी तो बैलेंस करके 0 बनेगा, बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। हमने माना लेट अस सपोज आफ्टर 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन के बाद हम अप्लाई करेंगे तो बॉडी चलना स्टार्ट हो जाएगी। यानी हर बॉडी के लिए 10 न्यूटन फिक्स नहीं होगा,
10 न्यूटन हर बॉडी के लिए फिक्स नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मास, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। समझ में आई बात को? यानी कि 10 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, और उस टाइम पे जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही बैकवर्ड में फोर्स लगेगा। लेकिन 10 न्यूटन से जब ज्यादा अप्लाई करेंगे, यानी 11 न्यूटन हमने अप्लाई किया, तो बैकवर्ड में अभी भी 10 लगेगा। यानी कि उस ब्लॉक की कैपेसिटी है, इस ब्लॉक की कैपेसिटी है कि एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही ये चलना स्टार्ट करेगा। उससे पहले क्या करेगा, ये स्टॉप है। एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही चलना है। कोई भी ब्लॉक, आप कोई भी चीज आप घर पे आपके रखी हुई हो, उसको टेबल को ही खींचना स्टार्ट, टेबल को जब खींचना स्टार्ट करोगे तो कम फोर्स लगाओगे तो नहीं होगा ये ना, खींचेगा नहीं, है ना, स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन जब एक पर्टिकुलर फोर्स लगाते हो तो खींचना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब कि टेबल पे हमने अगर कुछ फोर्स लगाया है और वो अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेट फोर्स उस पर 0, और आपने तो कुछ फोर्स लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, टेबल अपने बैकवर्ड में एक फोर्स लगा है, इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स है। बोलना ये बात। तो इसमें एक बार फिर से बताओ, ये सब लोग बताएंगे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड राइट, इफ वी अप्लाई दैट फोर्स, अप्लाइड फोर्स, इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इफ अप्लाइड फोर्स इज 5 न्यूटन, if applied force is 5 newton, what will be the uh, what will be the frictional force? What will be the frictional force if applied force is 5 newton? What will be the frictional force? Write out. Five newton only. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. 5 newton. Good. चलो नेक्स्ट बताओ आपको कि अगर अप्लाइड फोर्स में 7 न्यूटन ले लूं, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? सेवन न्यूटन, वेरी गुड। इफ वी अप्लाई, चलो नेक्स्ट बताओ, इफ वी अप्लाई 3 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स? 3, good. If we apply 0 Newton, what will be the frictional force? 0, good. If we apply 10 Newton, applied force 10 Newton, what will be the frictional force? Good, very good. If we apply 15 Newton, what will be the frictional force? गड़बड़ हो गया, कुछ लोगों का गड़बड़ हो गया, कुछ लोगों का गड़बड़ हो गया। 15 नहीं, 10, क्योंकि इस ब्लॉक की देख लेना, इस ब्लॉक की कैपेसिटी है कि ये 10 न्यूटन तक हिलेगा, ठीक है। 10 न्यूटन के बाद ये चलना स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम ये अपोज कितना कर सकता है, 10 न्यूटन का अपोज कर सकता है। और 10 न्यूटन के बाद क्या करेगा, वो सरेंडर कर देगा कि अब चलना ही पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगा दी, अब चलना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 15 न्यूटन नहीं, देख लेना, मैक्सिमम ये कितना अप्लाई कर सकता है, 10 न्यूटन, यानी मैक्सिमम आपको अपोज कर सकता है 10 न्यूटन। अगर हमने 15 लगाया और 15 ही उसने अपोज कर दिया तो मूव नहीं करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि 10 न्यूटन के बाद ये अपोज, 10 न्यूटन के बाद ये क्या करना लगता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। 10 न्यूटन के बाद ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 न्यूटन से ज्यादा लगाने पे ये चलना स्टार्ट कर देगा। अब ये 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब कि अगर मैं 11 न्यूटन लगाऊं तब भी ये 10 लगाएगा, है ना।
और अगर मैं 12 न्यूटन लगाऊं तब भी ये 10 लगाएगा, 13 लगाऊं तब भी 10, 15 लगाऊं तब भी 10, और मैं अगर 18 लगाऊं तब भी 10, अगर मैं 20 लगाऊं तब भी 10, अगर मैं 180 लगाऊं तब भी 10। समझा? यानी अपोजिट फोर्स जीरो से लेके 10 तक हो सकता है। हर बॉडी के लिए 10 फिक्स नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का मास क्या है और नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, समझ में आएगा? मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए 10 न्यूटन लिया हूं, तो जब इस बॉडी पे या जब इस ब्लॉक पे हम 10 न्यूटन तक अप्लाई करते हैं, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि बैकवर्ड फोर्स है वो 0 से 10 न्यूटन तक अप्लाई होता है। अगर हम 0 से 10 तक जाए, अप्लाइड फोर्स अगर 0 से 10 तक जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 से 10 तक जाता है। लेकिन जब अप्लाइड फोर्स 10 से ऊपर हो जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा 10 लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। समझ में आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे? अप्लाइड फोर्स पे, अप टू द मैक्सिमम लिमिट। अप टू द मैक्सिमम लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट इसकी हमने कितनी फिक्स कर दी? 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन तक तो क्या करेगा? जितना अप्लाई फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मैक्सिमम लिमिट तक इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम लिमिट गिवन थी, that is 10 Newton, means after applying 10 Newton the block will move, okay, and before 10 Newton if the applied force is less than 10 Newton, that means the block will not accelerate, okay। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 न्यूटन तक हम अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन होगा, लेकिन जब हम अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा रखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन ही होगा। इसका मतलब जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 0 से लेके एक मैक्सिमम लिमिट तक होता है। फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेके एक मैक्सिमम लिमिट तक होता है। तो ना लिखने से कुछ खास नहीं था, आपको समझना था ये, है ना। इतना जो समझाया हूँ मैं हाफ एन आवर, इसमें हाफ एन आवर समझाया, लिखवाया कुछ भी नहीं ना लिखने वाला। अगर तुम लोग रिएक्ट नहीं करोगे तो वैसे ही लिखवा दूंगा, आधे घंटे में मेरा लगभग हाफ टॉपिक खत्म हो चुका होगा, है ना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम, इसलिए आप लोग मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा इस लास्ट वाला, जिसको समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आई, हाफ एन आवर के बाद आप इसको एक बार रिकॉल कर सकते हो। अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो इस बार नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो ये सब चीजें क्लियर होंगी, तो आगे के जो फॉर्मूलेज होंगे उसको मैं बता दूंगा। ओके ओके, देन राइट योर अटेंडेंस एंड लीव। थैंक यू। सर हाँ बताओ। सर 17 का वीडियो रिकॉर्ड क्लासरूम में नहीं है। 17 का नहीं आया? नहीं सर, 16 का है, 17 का नहीं है। अच्छा देखता हूँ, देख लूंगा आज।